Hello students, welcome to my new video. In this video, we will learn the remaining part of the fourth lesson of geography, major landforms. So, you should take your SST textbook and open your page number 132. This video is the part 2 of this lesson. So, what we have seen in the first video, in the previous video, we have seen some words and their meanings in the beginning of this lesson. Okay, and you should write the words and meanings in your notebook also before the question and answers. It was the homework of first video. Okay, after it we have seen about two process. These process are weathering and the erosion. Okay, what is mean by weathering? Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. Okay, and there are some factors responsible for this weathering like heat, cold, frost, chemical reactions and work of plants and animals. Okay, then next process, erosion. We have seen about the erosion also. What is this erosion? It is the wearing away of the landforms by different agents like running water, wind and moving ice. And we can prevent the erosion because of the plantation. Okay, and how? Because its roots tighten and bind rocks particles and prevent them from the slipping away. Okay, in this way we can stop the erosion, we can prevent the erosion. Then next we have seen work of the river. In this topic we have seen about the source. What is mean by source? It is a term used for a place from where the river originate. जहाँ से river start होती है वहाँ उसे वो place को हम बोलेंगे source. Okay, then we have seen about the mouth. Mouth is a term used for the place where the river joins another water bodies. Means mouth किसे बोलेंगे हम? जहाँ पे रिवर जाके मिलती है. फॉर एग्जाम्पल इन ओशन, इन लेक. ओके, दैट प्लेस जहाँ पे मिलती है वो प्लेस को हम बोलेंगे माउथ ऑफ रिवर. ओके, देन रिवर बेसिन. रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरीज. मीन्स मेन एरिया रहता है रिवर का जहाँ पे इनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज है ये आके मिलती है एंड जो एरिया पूरे वाटर से भरा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड द रिवर बेसिन. ओके, देन we have seen about the V-shaped valley. That is the most common landforms which is formed by rivers. Okay, then gorge. That is a very deep and narrow valley. Okay, gorge means very deep and narrow valley. Then we have seen about the waterfall. A waterfall is formed when the water of the river falls almost vertically down a steep valley side. Okay, then we have solved the MCQs on page number 133. After it we have seen about the rapid. What is this rapid? Rapid is a term used to the steep sloping segment of the swift flowing river. Then after it we have seen about the meanders. You know meanders? Due to the continuous erosion, meanders are formed when the flow of the river valley widen. Okay, and the river twist and turn to form loops and the large bends. These are the meander. Okay, and the meandering loops become almost circular due to the continuous erosion and deposition and come very close to each other, and the circular loops is completely cut off from the main channels, and this results in the formation of an oxbow lake. ये जो मिंडर यहाँ पे फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द इरोजन एंड बिकॉज ऑफ डिपोजिशन. ये इनके जो
फ्लोइंग वेज है, ये एक दूसरे के नज़दीक आने की वजह से यहाँ पे लेक फॉर्म होते हैं. दैट लेक्स आर कॉल्ड द ऑक्सबो लेक. ओके. Then we have seen about the flood plain, and there is deposited alluvium, and because of this deposited alluvium forms a relatively flat region, and this relatively flat region is known as a flood plain. Okay. फ्लड प्लेन कैसे फॉर्म हो रहे हैं? जो भी रिवर अपने साथ एल्यूवियम फ्लो करके लाती है, मड फ्लो करके लाती है, और वो अपने साइड के एरिया में डिपॉजिट करती है, एंड वहाँ पे जो भी एरिया फॉर्म होता है, जो प्लेन एरिया फॉर्म होता है, उसे हम बोलेंगे फ्लड प्लेन. ओके. देन वी हैव सीन अबाउट द नेचुरल लेवीज. Natural levees means after many floods, these deposits fill up along the bank of the river and form a raised embankment. And जो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन की वजह से रिवर के साइड में कुछ एम्बैंकमेंट फॉर्म होते हैं. एम्बैंकमेंट मीन्स बांध. जो लैंड रहती है रिवर के साइड की, ये ऊपर आती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन. ओके. तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल लेवीज. ओके. आफ्टर इट वी हैव सीन अबाउट द सैंड बार, देन डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरीज, द मेन चैनल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल चैनल्स. ओके. जो मेन रिवर रहती है, ये जहाँ पे ओशन को मिल रही है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है. ओके. and अलग अलग चैनल्स में, and these several channels are known as a distributaries. Got it? And the most distinctive features formed in this stage of the river is the delta, and वहीं पे delta form होते हैं, and we have seen about the delta also in previous video. Okay. What is this delta? Delta is a depositional landforms formed by a network of distributaries, generally due to the deposition of sediment of the respective rivers. and delta कैसे फॉर्म हो रहे हैं? डिपोजिशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ रिवर. नाउ in this video we will see about the work of sea waves. In coastal areas, the sea is constantly eroding the old landforms and creating new ones. And in coastal area, coastal area means किनारा. and जो coastal area रहता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इरोजन होता रहता है, एंड जो ओल्ड लैंडफॉर्म्स है वहाँ पे इरोड होते हैं एंड न्यू लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. ओके. इन कोस्टल एरिया, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूसली इरोजन, erode the old landforms and forms the new landforms. Okay. Erosional and depositional work is performed by sea water, and जो erosion होता है and जो deposition होता है, ये किसकी वजह से हो रहा है? because of the sea water. Okay. with the help of the sea waves, current, tides and storms also help in it. Even hard rocks are broken down by the sea wave colliding in the coast. एंड जो हार्ड रॉक्स है, ये भी यहाँ पे ब्रेक होते हैं बिकॉज ऑफ द सी वेव्स, एंड ये कोस्टल एरिया में आके डिपॉजिट होते हैं. rock material is carried away by receding waves. This rock material present in the sea water caused the erosion of landforms against which it crashes. and जो rock material रहता है सी वाटर में, जो प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से फिर से इरोजन होता है. वो जो रॉक मटेरियल है, ये रॉक पे आके वेव्स के साथ टकराता है, उसकी वजह से फिर से रॉक का इरोजन होता है, लैंड का इरोजन होता है. ओके.
एंड दिस इज़ नोन एज अ मरीन डिपोजिशन और मरीन इरोजन, जो डिपॉजिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सी वेव्स, ओके, तो उसे हम बोलेंगे मरीन डिपोजिशन। एंड जो इरोजन हो रहा है उसे हम बोलेंगे मरीन इरोजन, ओके, बिकॉज ऑफ सी वेव्स देयर इज़ अ इरोजन। जो सी वेव्स हैं ये रॉक्स पे आके टकराती है, उसकी वजह से जो रॉक्स पार्टिकल्स है ये निकल आते हैं। एंड ये जो निकल आते हैं रॉक पार्टिकल्स, ये फिर से कोस्टल एरिया में डिपॉजिट होते हैं, एंड दैट डिपोजिशन इज कॉल्ड द मरीन डिपोजिशन, एंड दिस इरोजन इज कॉल्ड द मरीन इरोजन, ओके। Then, sea cliffs are formed when waves crash against a high rock coast near the base. And how form the sea cliffs? जो हाई रॉक्स रहते हैं, ऊंचे रॉक्स रहते हैं, बड़े बड़े रॉक्स रहते हैं, उस पर सी वेव्स टकराने की वजह से वो क्रैक होते हैं नियर द बेस, ओके, ये ब्रेक होते हैं बेस में, उसकी वजह से सी क्लिप्स फॉर्म हो रहे हैं। द रॉक्स आर इरोडेड नियर द बेस, रॉक्स बेस पे इरोड होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम द रॉक्स अबाउ द हॉलोड आउट पार्ट एंड कोलैप्स। एंड जो रॉक्स है ये इरोड होने के बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो रॉक्स है ये हॉलो हो जाते हैं। हॉलो मीन्स खोखले, एंड उसकी वजह से ये गिरते हैं। कोलैप्स मीन्स फॉलिंग, ओके, गिरना। इट लिव्स बिहाइंड अ स्टीप वॉल ऑफ रॉक्स फेसिंग द सी। अब जो भी बाकी रहता है वहाँ पे, तो ये क्या रहता है, अ स्टीप वॉल ऑफ रॉक, सॉरी, ओके। ये क्या रहती है, ये एक स्टीप वॉल रहती है रॉक की, और वो सी को फेस करती है। दीज आर नोन एज अ सी क्लिफ, इसे ही क्या बोलेंगे हम, सी क्लिफ। जो रॉक वॉल रहती है, स्टीप वॉल रहती है रॉक की, उसे कहा जाता है सी क्लिफ्स। सी हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ सी क्लिफ, ओके। Sea wave create a through passage when a headlands projecting into a sea is dashed. This passage is called the sea arc. And जो रॉक्स है उसके बीच में एक पैसेज बन जाता है, ओके। एंड ये जो पैसेज है ये फिर से इरोड होता है, उसे ही हम बोलेंगे सी आर्क, okay, that is the sea arc, this passage, okay. Then it leaves behind a pillar of rock standing in the open water, and when the roof of the sea arc is further eroded it collapse। and ये जो sea arc है इस पे फिर से सी वेव्स टकराने की वजह से ये जो रूफ है ये फिर से कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, ओके, ओशन में। एंड दिस आर टर्म्ड एज अ स्टैक, और जो बाकी बचा हुआ ये जो पिलर है यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे स्टैक्स, ओके। ये यहाँ से ये कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है बिकॉज ऑफ द सी वेव्स, एंड सिर्फ एक पिलर के जैसा यहाँ पे एक खड़ा हुआ, उसे हम बोलेंगे स्टैक्स। सैंडबार्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ब्रोकन रॉक मटेरियल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सी फ्लोर नियर द कोस्ट। एंड इन कोस्टल एरिया जो डिपोजिशन होता है उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उसमें से एक है सैंड बार, ओके। सैंड बार्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सी, ओके। देन sediments like pebbles and sand are deposited in the sea water along the coast, and some sediments means small particles of rocks जैसे पेबल्स एंड सैंड, ये डिपॉजिट होते हैं कोस्टल एरिया में, ओके।
They include material produced by marine erosion and brought by the rivers. और इसमें कौन सा मटेरियल इंक्लूड रहेगा? मरीन इरोजन मीन्स जो इरोजन हो रहा है सी वेव्स की वजह से, ये जो इरोड हुआ मटेरियल इसमें ऐड रहेगा, इंक्लूड रहेगा। एंड जो रिवर्स ने अपने साथ जो मटेरियल फ्लो करके लाया हुआ रहता है, ये भी इसमें इंक्लूड रहता है। A beach is formed in due to course of time from all these deposits. and जो बीच फॉर्म हो रहे हैं ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स। ओके, जो भी मटेरियल सी वेव्स के साथ फ्लो होता है ये कोस्टल एरिया में डिपॉजिट होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन फॉर्म द बीच। ओके, आपने देखे होंगे बीच कोस्टल एरिया में, समुंदर किनारे। ओके, तो ये किसकी वजह से फॉर्म हुए हैं? डिपोजिशन। ओके, समटाइम्स द सी वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन द सैंड बार्स एंड द कोस्ट। और कभी कभी क्या होता है कि जो सैंड बार फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स, एंड जो कोस्ट है, किनारा है, इसके बीच में सी वाटर कलेक्ट होता है। ओके, as a result a lagoon is formed when which is a partially enclosed lake and ये जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है बिटवीन द कोस्ट एंड द सैंड बार्स, इसे लेगून कहा जाता है। ओके, द चिलिका लेक इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया। एंड ये जो चिलिका यहाँ पे लेक है ओडिशा में, दैट इज़ द लार्जेस्ट लेगून। ओके, इन आर इंडिया। गॉट इट? वर्क ऑफ द सी वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ मूविंग आइस। वी हैव टू स्टडी अबाउट द वर्क ऑफ आइस। ओके, snowfields are formed by the snow which falls in the high latitudes and heights and ये जो snowfields है ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? जो आइस ऊपर से नीचे गिरते हैं उसकी वजह से। ओके, they lie above the snow line. A glacier is a river of snow and ice that moves out very slowly from the snowfields. एंड व्हाट इज दिस ग्लेशियर? ग्लेशियर किसे बोलेंगे हम? अ रिवर ऑफ स्नो। ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेशियर? दैट इज अ रिवर ऑफ स्नो, रिवर ऑफ आइस, एंड दैट मूव्स आउट वेरी स्लोली, बहुत ही स्लो ये मूव होती है फ्रॉम द स्नो फील्ड्स। ओके, देन ऑन नेक्स्ट पेज, page number 135, there are MCQs. We have to solve the MCQs. Okay, first, sea cliffs and formed due to crashing of, there are three options: waves, wind, gases. What is the answer of this MCQ? कैसे सी क्लिप्स फॉर्म हो रही है? बिकॉज ऑफ द क्रैशिंग ऑफ वेव्स। ओके, ए ऑप्शन इज आंसर हियर। Then second, weathering is, there are again three options: formation of rocks, breaking up of rocks, and rolling away of rocks. What is the answer? B option is the answer here, breaking up of rocks. Okay, then it may move at the rate of only a few meters a day. and ये जो glaciers है, रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ स्नो, ये बहुत ही स्लो मूव होती है, दिन में कुछ मीटर ही ये मूव होती है। ओके, द मेन वर्क ऑफ द ग्लेशियर इज ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन। एंड विच इज़ द मेन वर्क ऑफ ग्लेशियर? ट्रांसपोर्टेशन करना अपने साथ जो भी है उसका, एंड इरोजन। ओके, एंड डिपोजिशन, जो भी उसके साथ मटेरियल है ये डिपॉजिट करना। ओके, अ ग्लेशियर कैन अल्टर्ड एज वेल एज टोटली रिमूव द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स, क्रिएटिंग कंप्लीटली न्यू एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। एंड ये जो ग्लेशियर है ये
जो भी लैंड फॉर्म्स है इसे रिमूव करती है, इरोड करती है, ओके। जो एग्जिस्ट लैंड फॉर्म्स है उसे उसके बीच में जो भी आता है, ओके, एंड क्रिएटिंग कम्प्लीटली न्यू, एंड कुछ न्यू लैंड फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट करती है, एंड कुछ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर। See, that is the picture of glacier, okay. What is the work of glacier? Transportation, erosion and deposition. एंड जो ग्लेशियर है उसकी वजह से जो भी लैंडफॉर्म्स है ये रिमूव हो सकते हैं और कुछ न्यू बन सकते हैं, ओके, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। When a glacier passes through a valley, जैसे ग्लेशियर वैली से पास होती है, the floor and sides of valley are eroded by the rock pieces present in the glaciers। अब जब ग्लेशियर्स वैली से पास होती है, जो भी फ्लोअर है, जो भी वैली की साइड है, ये इरोड होती है बिकॉज ऑफ द रॉक पीसेस प्रेजेंट इन द ग्लेशियर। ग्लेशियर्स में जो भी रॉक पीसेस है उसकी वजह से वैली की साइड इरोड होती है एंड फ्लोअर भी इरोड होता है, ओके। दस द फ्लोअर बिकम्स फ्लैट एंड साइड्स बिकम स्टिप्स, और उसकी वजह से जो भी फ्लोअर है ये फ्लैट बन जाता है और साइड्स स्टिप्स बन जाती है। दिस टाइप ऑफ वैली इज कॉल्ड द यू शेप्ड वैली। इसे हम क्या बोलेंगे? यू शेप्ड वैली, ओके। दैट इज द पिक्चर ऑफ दिस यू शेप्ड वैली। Along the slope of a mountain, the glacier carved out deep hollows. एंड जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के पास से अगर ग्लेशियर पास हो रही है तो ये माउंटेन्स को कार्व करती है। कार्व मीन्स कट द रॉक्स, कट करती है, ओके। इट डेवलप्स एन आर्मचेयर लाइक डिप्रेशन विच इज नोन एज अ सर्क, and the depression is filled up with the water and the form of form a lake when glacial ice melt। and जो भी डिप्रेशन है, जो भी डीप एरिया है, ये वाटर से भर जाता है जब ग्लेशियर का जो भी आइस है ये मेल्ट होता है, ओके। जब ग्लेशियर में जो आइस है ये अगर मेल्ट होता है तो जो नीचे का हिस्सा है वो पानी से भर जाएगा, वाटर से भर जाएगा। दिस लेक इज़ नोन एज अ टान। और जो भी डिप्रेशन है, जो भी फ्लोअर पे डीप एरिया है, अगर वो मेल्टिंग आइस से भर जाता है और वहाँ पे फिर एक वाटर बॉडी बन जाती है, लेक बन जाता है, वो लेक को क्या बोलेंगे हम? टान। The capacity of glacier to carry load is reduced when it start melting। और जो कैपेसिटी है ग्लेशियर की, जो लोड कैरी करने की, ये रिड्यूस हो जाती है जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। Hence it deposits the rock material on the floor and side of the valley, and इसकी वजह से जो भी रॉक्स मटेरियल है ये फ्लोअर पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मरेन्स एंड मोरेन्स, एंड ये जो भी डिपॉजिट होता है उसे हम बोलेंगे, उसकी वजह से क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लेशियर मोरेन्स। गॉट इट? जब ग्लेशियर मेल्ट होती है उसका जो भी जो लोड वो कैरी कर रही है, ये कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से जो डिपोजिशन है ये स्टार्ट हो जाता है, वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है जो भी फ्लोअर एरिया है, वैलीज़ की साइड है वहाँ पे, और उसकी वजह से कुछ फॉर्म होता है, ओके। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? ग्लेशियर मोरेन, ओके, डिपोजिशन की वजह से। देन वर्क ऑफ विंड, वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, वर्क ऑफ विंड। अभी हमने पढ़ा
work of sea waves, work of moving ice. Okay, before it we have studied about the work of river also. Okay, now we have to study about the work of wind. विंड की वजह से भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं. विंड एक्शन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन डेजर्ट. एंड ये जो विंड्स है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे ब्लो हो रहे हैं? इन डेजर्ट एरिया. ओके, इसका इनका स्पीड कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है? डेजर्ट एरिया में. विंड ऑल्सो वर्क्स लाइक आइस एंड वाटर. और वह विंड्स भी आइस एंड वाटर जैसा वर्क करता है. इट इरोड्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट रॉक्स मटेरियल्स. अब जो विंड्स है ये भी इरोड करते हैं रॉक्स को, एंड ट्रांसपोर्ट्स भी करते हैं एंड डिपॉजिट भी करते हैं रॉक मटेरियल को. ओके, इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट्स ऑफ इरोजन इन द डेजर्ट where it blows freely because of the absence of vegetation. and बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कहाँ पे है ये winds? इन द डेजर्ट एरिया. ओके, इस बहुत ज़्यादा इरोजन होता है विंड्स की वजह से डेजर्ट एरिया में. वाई? बिकॉज इट ब्लोज फ्रीली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द वेजिटेशन. और डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन न होने की वजह से ये फ्रीली यहाँ पे ब्लो हो रहे हैं. ओके, a large amount of sand, dust, particles and gravel are carried with strong winds which erode the rocks. and बहुत सारी sand, dust particles, gravels ये अपने साथ लेके blow होने की वजह से ये rocks पे टकराते हैं और उसकी वजह से rocks erode होते हैं. okay, this winds erodes the lower part of the rocks more than the upper part. और ये जो winds है ये रॉक्स को कैसे इरोड कर रहे हैं? नीचे के हिस्से को ये इरोड कर रहे हैं, लोअर पार्ट को ये रॉक्स के इरोड कर रहे हैं, और अपर पार्ट पे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे. ओके, दिस गिव्स द रॉक अ शेप रिसेम्बलिंग अ मशरूम. और उसकी वजह से कैसे शेप मिल रहा है रॉक को? मशरूम शेप. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सी हियर, अगर ये रॉक है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन. ओके, एंड अगर जो विंड्स है ये यहाँ पे ही ब्लो हो रहे हैं एंड ये रॉक्स को यहीं पे टकरा रहे हैं, उसकी वजह से जो रॉक है ये यहाँ से ऐसे कट होता जा रहा है. ओके, इधर से भी विंड्स आ रहे हैं और यहाँ से भी कट हो रहे हैं, तो कैसे शेप मिलेगा रॉक को? मशरूम शेप. ओके, गॉट इट? This gives the rock a shape resembling a mushroom. Hence, such rocks are called the mushroom rocks. और इसकी वजह से ऐसे rocks को क्या बोलेंगे? Mushroom rocks. Okay. Sand dunes are the coarse particles deposited in the form of hillocks. And जो sand dunes है, dunes means hills. Okay. ये भी जो पार्टिकल्स है, रॉक्स पार्टिकल्स, ये डिपॉजिट होने की वजह से बनती है. दे डेवलप व्हेन देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ ऑफ द विंड एंड दे वैरी इन हाइट रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू 300 मीटर्स. एंड ये जो भी सैंड ड्यून्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है, इनकी जो हाइट है ये अलग अलग होगी. कुछ मीटर से ये 300 मीटर्स तक फॉर्म होती है. ओके, द लीवर्ड स्लोप इज स्टीप एंड द विंडवर्ड स्लोप इज अ जेंटल. और जो लीवर्ड स्लोप है ये स्टीप रहेगा, मीन्स जिस डायरेक्शन से विंड्स ब्लो हो रहे वहाँ पे स्लोप जेंटल रहेगा, एंड उसके अगेंस्ट की जो साइड है, लीवर्ड साइड बोलेंगे हम उसे, ये स्टीप रहेगी. ओके, सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फॉर्म्ड इन ग्रुप. और ये जो सैंड ड्यून्स है ये ग्रुपली फॉर्म होती है. ओके, व्हाट इज मीन बाय सैंड ड्यून्स? हिल्स ऑफ सैंड्स. ऑन पेज नंबर 136. Sometimes fine dust particles are carried by the wind and deposited in the distant regions. बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स विंड्स के साथ ब्लो होते हैं
एंड वो दूर जाके डिपॉजिट होते हैं, दूर के रीजन में वो डिपॉजिट होते हैं. These deposits gradually developed into the thick layer of soil एंड ये जो डिपोजिशन है ये धीरे धीरे इसका जो लेयर है ये थिक बन जाती है. एंड सच डिपॉजिट्स आर नोन एज अ लॉइस, और ये जो डिपोजिशन होते हैं इसे हम बोलेंगे लॉइस. ओके. दूर के रीजन में जो विंड्स के साथ सैंड ब्लो होके जाती है, रॉक्स पार्टिकल्स ब्लो होके जाती है और दूर के रीजन में ये डिपॉजिट होते हैं, उसे हम बोलेंगे लॉइस. ओके. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट, weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. What is this weathering? That is a breaking up of rocks. Okay. Then next, erosion. What is this erosion? Erosion is the wearing away of the landforms by different agents. अलग अलग agents की वजह से, for example running water, winds and the ice. Okay, moving ice. इनकी वजह से इरोजन होता है, और जो भी लैंडफॉर्म्स है इसमें से जो भी पार्टिकल्स है, रॉक्स पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ये बह के निकल जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द इरोजन. ओके. रिवर बेसिन इज एन एरिया विच इज़ अ ड्रेन बाय द रिवर एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरीज. एंड रिवर बेसिन किसे बोलेंगे हम? जहाँ पे मेन रिवर रहती है और उनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज रहती है. ट्रिब्यूटरीज मीन्स स्मॉल rivers meet to big river, that is called the tributaries. okay. तो जहाँ पे ये ट्रिब्यूटरीज बड़े रिवर को मिलती है, जॉइन होती है, ओके, दैट एरिया इज कॉल्ड द रिवर बेसिन. मेन एरिया रहता है रिवर का. ओके. In the plains, the river forms minder, oxbow lakes, flood plains, natural levees, sandbars and deltas. And plain area में रिवर कौन सा वर्क कर रही है, क्या क्या फॉर्म कर रही है? मिंडर्स फॉर्म कर रही है. ओके. ऑक्सबो लेक्स फॉर्म कर रही है. मिंडर किसे बोलेंगे हम? जो बेंडिंग शेप मिलता है रिवर को, ओके, उसे हम बोलेंगे मिंडर. एंड ये जो बेंडिंग शेप है आफ्टर सम टाइम ये कट हो जाते हैं मेन फ्लो से. ओके. और वहाँ पे लेक बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सबो लेक. फ्लड प्लेन्स, ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं फ्लड प्लेन्स? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन. ओके. देन नेचुरल लेवीज एंड सैंडबार्स एंड द डेल्टास, ये सभी फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ रिवर. ओके. Then sea arcs, sea caves, stacks and sea cliffs are formed due to the erosion of the sea waves. And sea waves के erosion की वजह से कौन से क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे? sea caves, sea arcs, stacks and sea cliffs. Okay. Then next, sandbars, lagoons and beaches are formed due to the marine deposition. एंड बिकॉज ऑफ मरीन डिपोजिशन. मरीन डिपोजिशन किसे बोलेंगे हम? सी वेव्स की वजह से जो भी डिपोजिशन हो रहा है उसे हम बोलेंगे मरीन डिपोजिशन. ओके. एंड क्या फॉर्म हो रहा है? व्हाट इज द फॉर्म हियर बिकॉज ऑफ द मरीन डिपोजिशन? सैंड बार्स, लेग्यून एंड द बीचेस. ओके. देन अ ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ स्नो and ice which moves out very slowly from the snow fields. and snow fields से ये बहुत ही slowly move होती है glaciers. what is mean by glaciers? Glaciers means river of ice, river of snow. okay. then next, glacier erosion leads to the formation of a U-shaped valley, Sark and the Tan. एंड बिकॉज ऑफ ग्लेशियर इरोजन की वजह से यहाँ पे यू शेप्ड वैली फॉर्म हो रही है, सर्क एंड द तान. ओके. देन ग्लेशियल मोरेन्स आर डिपॉजिट्स ऑफ द रॉक्स मटेरियल्स ऑन द फ्लोर एंड साइड ऑफ द वैलीज. एंड ग्लेशियर मोरेन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर.
ओके, डिपोजिशन ऑफ रॉक मटेरियल, जो भी रॉक मटेरियल ग्लेशियर के साथ आता है ये डिपॉजिट होने की वजह से ग्लेशियर मोरेन्स फॉर्म हो रहे हैं. विंड इरोजन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन डेजर्ट, एंड विंड इरोजन कहाँ पे होता है? स्पेशली इन द डेजर्ट एरिया. Then mushroom rocks are formed due to the wind erosion, and mushroom rocks कैसे form हो रहा है? Because of the wind erosion. Okay, and then last point is here, loess and sand dunes are the features of the wind deposition, and wind depositions की वजह से क्या form हो रहे हैं? Loess and the sand dunes. Okay, got it? Now a lesson is completed here. Okay,